So, good evening, everyone. I welcome all the science students of class 7th. So, we are here to discuss the answer key of NTSO, which is held today. Now, without any further ado, let's start with the answer key. I'm going to solve the complete answer key of chemistry, physics, and the biology part for class 7th. Right. So, without any further ado, let's start with the session. So, yes, there's a first question. A body covers half of the total distance. A body covers half of the total distance at a speed of 20 kilometers per hour. The remaining half of the distance is covered in two equal time intervals at a speed of 30 kilometer per hour and 10 kilometer per hour respectively. What is the average speed of the body for the entire journey? So what is the formula of average speed? First of all, average speed is equal to total distance divided by total time. So let the total distance let the total distance of the journey let the total distance of the journey be d. Body covers half of the distance, which is d1, which is obviously d by 2 at a speed भी given है question के अंदर, मैं लिख रहा हूँ at a speed which is v1 20 kilometer per hour. Now the time taken for the same is time taken t1 for the same is d1 upon v1, so which is equal to d by 2. d1 is here, right? d by 2 and mu1, yeah, v1 is equal to 20, right? So it comes out to be d by 40, right? So t1 is equal to d by 40. Now similarly we have to solve it for the second half. For the second half, therefore the second half of the distance, which is d2, which is equal to d by 2, and at a speed of 30 kilometer per hour, which is v2, and at a speed of v3, which is 10 kilometer per hour. Now let's calculate the average speed. So the average is equal to v2 plus v3 divided by 2, which is equal to 30 plus 20 divided by 2, right? No, sorry, this is 30 plus 10. v2 is 30 and v3 obviously is 10, so 30 plus 10 is divided by 2, which is 40 by 2, right? Which comes out to be 20 kilometer per hour, right? So now let's calculate the total time, which is t2. So now I have to rub this part. Okay, I need a space here to calculate the total time. So now the total time is, which is equal to t2, that is equal to t2 by v average. t2 is equal to d by 2 divided by, obviously v average is 20 kilometer per hour. So obviously this comes out to be d by 40. So v average, we need to calculate the average of speed. So v average is equal to obviously d by t1 plus t2. This is what total time.
sorry, total distance divided by the total time taken, right? So it comes out to be d by, we have to substitute the value of t1 and t2. From there we need to substitute the value of t1 and t2. t1 is equal to d by 40, मैं directly values put कर रहा हूँ, and d by 40, right? So now it comes out to be d by, this comes out to be 2d divided by 40, right? This comes out to d से d cancel out हो जाएगा, that is equal to 40 by d, 40 by 2, this comes out to be 20 kilometer per hour. So the correct option is B, 20 kilometer per hour, right? So now let's move further for the next question. Yes, the distance time graph can be used to find. First of all, let me tell you what is the distance time graph. देखो distance time graph आप ऐसे ले सकते हो, x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, आप x एक्सिस पे टाइम को रखते हो और y एक्सिस को, y एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस को, तो आप y एक्सिस, y सेगमेंट से आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो और x सेगमेंट से आप टाइम फाइंड आउट कर सकते हो. तो let's see what are the options here. Distance moved by an object and at any instant of time. Obviously you can find out the distance at any interval of a time. You can find out the distance, okay? The speed of the object, okay, speed भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो आप स्पीड यहां से निकाल सकते हो. डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डेफिनेट टाइम इंटरवल, अगर कोई टाइम इंटरवल बिल्कुल डेफिनेट है उसके अंदर भी आप क्या निकाल सकते हो? डिस्टेंस निकाल सकते हो. डिस्टेंस चाहे आपका डेफिनेट टाइम इंटरवल के अंदर हो, चाहे आपका टाइम इंटरवल डेफिनेट ना हो, एट एनी इंस्टेंट पूछा है तो भी आप निकाल सकते हो. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ऑल here are the correct answers for the distance time graph. Now the question number 3, match the column 1 and column 2 and select the correct options from the given code. Let's see what are the, we have to calculate what is the motion. We know that the motion is basically, let's see here, when a body changes its position with time, obviously it's a motion. Now let me change the color of the pencil. Yes, now it's, I think this is correct. Okay, so when a body changes its position with time, so P is 3. What are the P3? यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऑप्शन B and ऑप्शन A. Now let's talk about the next one is what is non-uniform motion. अब सबको पता है non-uniform motion क्या होता है? Non-uniform motion होता है unequal distances पे equal interval of time को पूरा करना. So let's see here. The S is unequal distances in equal interval of a time. So it's a non-uniform motion, right? So S is 1. Let's see where it is. The S is 1. S is 1 is here. S is 1 is here also. अभी भी हम क्वेश्चन के आंसर तक नहीं पहुंचे. Now let's talk about the next one. Interval between two events. Interval between two events is obviously the time. Q का 3 कौन सा है? P का सेकेंड हो जाएगा आपका, ऑब्वियसली मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. P का ऑप्शन हो जाएगा बेटा सेकेंड, और Q का ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में थर्ड, और S का ऑप्शन ऑब्वियसली कितना है? हमने निकाल रखा है 1. अब आप मैच करके देखो P, Q और S किसके अंदर आता है. तो ऑब्वियसली P सेकेंड, Q थर्ड, S1, R IV. ऑब्वियसली लास्ट है. यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड. So the correct answer is C. Let's move further and see what is the next question. The three identical metal rods PQR are heated at one end by identical burners. Rod P is made up of a copper, rod Q is made up of a iron, and rod R is made up of a glass. Now all rods have the same length and thickness, are initially at the same temperature. Length गिवन है यहाँ पे और थिकनेस गिवन है, सबकी लेंथ और थिकनेस सेम है. नाउ क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस. व्हाट आर द ऑप्शंस वी हैव? फर्स्ट ऑप्शन, द टेम्परेचर ऑफ ऑल थ्री रॉड्स विल राइज एट द सेम रेट. एक कॉपर है, एक आयरन है, एक ग्लास है. ऑब्वियसली कॉपर मेटल है, आयरन भी मेटल है, ग्लास
आपका ग्लास का टेम्परेचर सेम रेट से कैसे इंक्रीज कर सकता है? तो पहला ऑप्शन तो सही नहीं लग रहा हमें, हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेंसिल. लेट्स सी. या यस, सो ऑप्शन ए इज एलिमिनेटेड. हीट विल बी ट्रेवल फास्टर थ्रू रॉड आर. आर ग्लास की है, ग्लास इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती. ऑप्शन बी भी हम एलिमिनेट करेंगे. रॉड पी विल कंडक्ट हीट फास्टर देन क्यू. रॉड पी विल कंडक्ट हीट फास्टर देन क्यू एंड बट क्यू विल फास्टर देन आर. और क्यू क्या कर रहा है? आर से फास्टर हीट कंडक्ट कर रहा है. ये ऑप्शन हमें लग रहा है इसको होल्ड पे रखते हैं. लेट्स सी व्हाट इज ऑप्शन लास्ट. ऑप्शन डी, रॉड क्यू विल कंडक्ट हीट फास्टर. Rod Q will conduct heat faster than the P because iron is a heavier. Iron is a heavier, it is not that the iron will conduct heat more faster, right? So the option C is correct answer. Rod P will conduct because copper is a good conductor of heat, right? So heat faster than Q and Q faster than R. Obviously R आपके पास में glass है, तो option C is the correct answer for the same. Now let's talk about the next question. Question number 5. The blocks A and B, equal mass heated with by the same amount of heat energy. Block A shows a temperature rise of 40 degrees Celsius while block B shows a temperature of 20 degrees Celsius. Which conclusion is correct? देखो ब्लॉक A है, टेम्परेचर दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस. ब्लॉक B है, टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री. पूछा है किसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी. स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट इज, it is the amount of heat energy, amount of heat energy required to raise a temperature 1 unit mass. एक यूनिट मास अगर आपके पास में है, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने में जितनी हीट लगती है उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं, ऑब्वियसली, राइट? तो लेट्स सी, ए को आपने हीट किया, टेम्परेचर आया 40 डिग्री सेल्सियस. बी को आपने हीट किया, टेम्परेचर आया 20 डिग्री सेल्सियस. ऑब्वियसली आप देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी? जिसका टेम्परेचर कम होगा. तो बी की टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस. सो द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी is more of block B. आंसर क्या हो जाएगा? ब्लॉक B has a greater specific heat than A, right? So let's see for the next question. Now the question number 6, which of the following statements regarding the radiation is correct? Obviously radiation, conduction and convection are the basically mode of heat transfer in solid, liquid and gas. So let's see the options. What are options? Radiation is the only process of heat transfer that can occurs in the absence of any form of medium. रेडिएशन आपका सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस के अंदर भी काम में आता है हीट को ट्रांसफर करने के लिए. ऑप्शन ए तो हमें करेक्ट लग रहा है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द ऑप्शन सेकंड. रेडिएशन कैन नॉट पास थ्रू सॉलिड्स. रेडिएशन सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में से पास होते हैं, तो ऑप्शन बी एलिमिनेटेड. थर्मल एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय इंफ्रारेड रेडिएशंस. दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. थर्मल एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय इंफ्रारेड रेडिएशंस, राइट? आईआर से क्या होता है बेटा? थर्मल एनर्जी ट्रांसफर, राइट? सो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट आंसर. विद ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड, यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द सेम. So let's move further for the next question. 3 wires PQR are connected one by one by the same battery of the same time. Wire P is a thin and long. देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? दे रखा है वायर P is a thin and long. Thin and long है तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है? इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई रेजिस्टेंस होगा इसका. वायर Q is a thick and short. इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? लो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है. और हमारे पास में लास्ट में ऑप्शन है वायर आर इज अ मीडियम लेंथ एंड थिकनेस. ऑब्वियसली इसका रेजिस्टेंस इन बिटवीन ही होगा, ठीक है. इसका रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? इन बिटवीन होगा.
अब हमें पता है यार हीट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप हीट का निकालोगे फॉर्मूला तो देखो यहाँ पे हीट अगर वायर के केस में है तो हम देखते हैं कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ वायर। हीट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्ट रिलेशन में है और लेंथ के इनवर्स रिलेशन में है। तो देखो आप क्या होगा, और हीट प्रोड्यूस, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसका रेजिस्टेंस के साथ में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस के साथ में क्या है बेटा, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हीट हीट प्रोडक्शन क्या है, डायरेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो आप देख लो, अब सीधा सीधा क्वेश्चन निकल रहा है। जिसका हाई रेजिस्टेंस है उसकी हीट क्या होगी, कम प्रोड्यूस होगी। तो हाई रेजिस्टेंस पी के अंदर है, हीट कम प्रोड्यूस होगी। क्वेश्चन में पूछा है ऑल वायर विच वायर विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम हीट। तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा सबसे ज्यादा हीट वही प्रोड्यूस करेगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्यू विल प्रोड्यूस मोर हीट बिकॉज इट हैज अ लो रेजिस्टेंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, move further for the next question. Yeah, the question number 8. In an electric bell, when the switch is pressed, current flow through the coil and the electromagnet attracts the iron rod and the hammer strikes the gong and the circuit will break and the electromagnet lose the magnetism. Which of the following sequence correctly explain the continuous ringing of the bell? तो अगर आपने इलेक्ट्रिक बेल का मैकेनिज्म पढ़ा है तो हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होता है जो बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से बनाते हैं। इट इज़ अ बेसिकली टेम्परेरी मैग्नेट जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो उसकी पावर को। उसके अंदर क्या होता है बेसिकली बेटा, जब आप उसको उसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो आयरन की रॉड जो होती है वो चार्जेस जनरेट करती है गोंग के ऊपर, और गोंग आयरन रॉड को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और गोंग उसके ऊपर हिट करता है। जैसे ही गोंग आयरन उस बेल के अंदर, जैसे ही आयरन रॉड उस गोंग को हिट करती है तो पीछे से सर्किट ब्रेक हो जाता है। जैसे ही सर्किट ब्रेक हुआ आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करना बंद कर देता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने के लिए सर्किट कंप्लीट चाहिए, लेकिन अनटिल एंड अनलेस जैसे ही आयरन रॉड ने क्या किया, गोंग को हिट किया तो सर्किट ब्रेक हो जाता है। और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। वो गोंग को हिट करता है, सर्किट ब्रेक करता है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी शो नहीं करता। दोबारा से आपका आयरन रॉड अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाता है, और यही प्रोसेस कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है, तो लेट्स सी व्हाट आर द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेट। करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, सबसे पहले तो करंट सर्किट में से फ्लो करता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स द आयरन रॉड। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो आयरन रॉड को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, क्योंकि हमने पढ़ा है जब इलेक्ट्रिसिटी आप किसी में से पास करते हो तो उसके पास में मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है ऑब्वियसली। सो व्हाट इज द नेक्स्ट, द हैमर स्ट्राइक्स द गोंग, ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट करेगा। तो जो आपका हैमर होता है, आयरन हैमर होता है, वो गोंग को हिट करता है। जैसे ही वो हिट करता है सर्किट ब्रेक कर जाता है, तो सर्किट विल ब्रेक एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट विल लूज मैग्नेटिज्म। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द सेम। करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, the electromagnet attracts the iron, okay, the hammer strikes the gong, the circuit will break, circuit break karta hai, and the electromagnet loses the magnetism. So option A is correct answer for the same. Now let's see what is the next question. A ray of light is incident on a plane mirror at an angle of 30 with the surface of the mirror. What is the angle between the incident ray and the reflected ray? तो आप ये समझो पहले, ये मेरे पास में प्लेन मिरर है, इसको मैंने M1 कह दिया, ये इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्टेड रे आई। ये आपका नॉर्मल है, या आपका इंसिडेंट रे है, या आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये आपका नॉर्मल है। गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, आपको ये वाला एंगल गिवन है। एंगल कितना है, 30। कितना है बेटा, 30 डिग्री। ऑब्वियसली हमें पता है ये नॉर्मल से लेकर के यहाँ तक का एंगल होता है 90। 30 गिवन है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होगा, 60। अगर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल 60 है तो फिर रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल का एंगल भी ऑब्वियसली 60 होगा, और यहाँ का एंगल कितना होगा, 30 डिग्रीज। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना है, तो हमें पता है यहाँ पे कितना है, 60। इंसिडेंट रे का एंगल कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 60 एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू ऑल्सो 60। so this comes out to be 120, right, 120 degrees. Option C is the correct answer for the same.
Now let's move further for the next question. Next question is question number 10. A beam of parallel light ray is incident on two surfaces. सरफेस एक्स इज स्मूथ एंड पॉलिश्ड. देखो सरफेस एक्स कैसा है, स्मूथ और पॉलिश है. सरफेस बी कैसा है, रफ और अनइवन है. हमने पढ़ा है अगर स्मूथ सरफेस होगा तो रिफ्लेक्शन कैसी होगी, स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्शन इज रेगुलर, राइट. और अगर सरफेस रफ होगा तो रिफ्लेक्शन कैसी होगी, डिफ्यूज. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बोथ सरफेसेस प्रोड्यूस रेगुलर रिफ्लेक्शन, नो. बोथ सरफेसेस स्कैटर लाइट इक्वली, नो. Surface X produces regular reflection, surface Y produces diffuse reflection. Obviously, option C is correct. So let's move for the next question. So next question is, two plane mirrors are placed parallel to each other at a distance of 2 meter. An object is placed exactly in the middle between the two mirrors. How many images will be formed? This is also a physics. This chapter basically the light का question है, ये physics का question है, light chapter से. आपके पास में दो parallel mirrors दे रखे हैं, 2 मीटर की डिस्टेंस है बीच में, एंगल गिवन नहीं है, एंगल डिफाइंड नहीं है, तो हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड. तो इमेजेस निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 360 बाय थीटा. और थीटा कितना दे रखा है बेटा क्वेश्चन के अंदर, थीटा इज 0, नॉट डिफाइंड. तो थीटा अगर 0 है तो कितनी इमेजेस बनेंगी, इनफाइनाइट बनेंगी, राइट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ लेट्स मूव फर्दर फॉर द नेक्स्ट. An object is placed at the center of curvature C of a concave mirror. The image formed will be at. तो पहले तो कॉन्केव मिरर हम बना लेते हैं. ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये इसका फोकस है. ठीक है. सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपने लाइट को फॉल कराया, लाइट जाएगी ऊपर और फोकस से होते हुए ऐसे आपकी क्रॉस करेगी फोकस को. ठीक है. जहाँ से आपकी लाइट जाएगी ये भी आपकी फोकस के ऊपर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी. तो अगर इमेज ये थी, ये नीचे की तरफ क्या बनेगा आपका, सॉरी ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है कर्वेचर पे, और आपकी इमेज भी कहाँ पे बन रही है, कर्वेचर पे ही बन रही है. देख लो ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर. विच वन इज करेक्ट आंसर फॉर द सेम. फोकस, फोकस पे नहीं बनती, इन्फाइनिटी पे नहीं बनती, बिटवीन सेंटर एंड फोकस नहीं बनती, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनती है. अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही प्लेस करोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. एयर विल मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ लो प्रेशर टू हायर प्रेशर. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है. एयर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर रीजन, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर रीजन. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है इसके अंदर. एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू लोअर. एयर मूवमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर. ठीक है. आपके पास में 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपके पास में 3 ऑप्शंस हैं. तो लेट्स सी व्हाट इज हियर. आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है इसके अंदर. एयर विल मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर प्रेशर टू हायर, ऑब्वियसली ये गलत है. हायर प्रेशर टू लोअर एयर मूव करती है, एंड एयर विल मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ये सही है सेकेंड वाला. नेक्स्ट इज एयर मूवमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर. ऑब्वियसली एयर का मूवमेंट प्रेशर पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन 1 एंड 3 आर इनकरेक्ट. the correct answer same. Now let's move further for the next question. The next question is, a farmer finds that his field soil is too acidic for heavy crop growth. He decided to treat the soil using a chemical substances. Which of the following substances is most suitable and why? See, the farmer will finds that the soil is too acidic. एसिडिक सॉइल है तो लेट्स सी कौन से केमिकल से वो ट्रीट करके उसके पीएच को मेंटेन करता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिकॉज इट्स इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, ऑब्वियसली नो. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑब्वियसली एसिडिक होता है ये नेचर का, तो ये सॉइल के पीएच को और इंक्रीज कर देगा. स्लेक लाइम, स्लेक लाइम आपका क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, और एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करेगा बेटा, बेस न्यूट्रलाइज करेगा.
because it neutralizes the excess acid in the soil. Obviously B ही treat करना चाहिए. Common salt because it react with acid to form a basis. No baking soda because it make the soil strongly basic. Baking soda आपका weak base होता है, तो strongly basic कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो the most appropriate answer is B. Slake lime से treat करेंगे. Slake lime is basic, जो pH को maintain करेगा obviously. Now the next question, question number 15. Number 15, read the statement given and select the correct option. Statement 1, acids are substances which produce hydrogen ion when dissolved in water. Yes, according to Arrhenius, एसिड्स वो होते हैं बेटा जो H+ देते हैं, H+ आयंस को प्रोड्यूस करते हैं एक्वा सोल्यूशन के अंदर, पानी के अंदर. अर्हीनियस एसिड्स या बेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट होता है. सॉल्वेंट होना ज़रूरी है, तभी जा करके वो H+ आयंस को प्रोड्यूस कर पाते हैं. एसिड्स आर बिटर इन टेस्ट. ऑब्वियसली एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट. Statement 1 is correct, but statement 2 is, option is, statement 1 is true, statement 2 is false. So C is the correct answer for the same. Now let's move further. Which of the following will lead to the chemical change? आपको chemical change बताना है, बहुत ही simple question है. Making a fruit salad and keeping it in the open air for hour. Fruit salad को cut किया, obviously आप उसको थोड़े टाइम के लिए रखोगे एयर के अंदर, तो उसके अंदर ऐसा कोई एज सच केमिकल चेंज होता नहीं है. फ्रूट सैलेड की तरह ही टेस्ट करेगा. ठीक है, तो ये तो फिजिकल चेंज हो गया, ये फिजिकल चेंज है. हमें केमिकल चेंज फाइंड आउट करना है. हीटिंग अ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो तो ये आपको CaO + CO2 देता है, जो कि नए केमिकल्स मिलते हैं. ठीक है ना, एक केमिकल को आपने हीट किया, आपको अलग अलग नए केमिकल्स मिल गए. ठीक है, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है. यहाँ पे केमिकल चेंज के अंदर कंसीडर कर रहे हैं. मेकिंग अ पेपर बोट एंड फॉर्म अ पेपर, ऑब्वियसली आप पेपर से दोबारा बोट भी बना सकते हो, तो इट्स ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. ये भी फिजिकल, ये भी फिजिकल. कीपिंग एन आयरन नेल इन अ मॉइस्ट एयर फॉर फ्यू डेज, इस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं. रस्टिंग के अंदर ब्राउन कलर की लेयर आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है. विद द टाइम आयरन आपका एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है और ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है. So these two are chemical changes. First and second and fourth. Option is D. Second and fourth are the correct answer. Next question. During an experiment, a student observed the following changes. Gas is released. The color of the substance changes permanently. Heat is produced. The original substance cannot obtain back. Which conclusion is most appropriate? During an experiment, student observed these following observations. It is physical change. Because heat is produced, obviously physical change नहीं हो सकता, color change हो रहा है, heat produce हो रही है. These all are the characteristics of chemical changes. Next क्या है? It is a physical change. Obviously physical change है नहीं. Option A और B क्या है? दोनों ही neglected है. It is chemical change because a new substance is formed. It is temporary change. देखो temporary change physical होते हैं, chemical नहीं, तो option C is correct. ठीक है? It is chemical change because new substance is formed. Let's move to the next question. Given below is a list of few materials: sunlight, water, cellulose, chlorophyll, oxygen, carbon dioxide. ये क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से है. तो विच अमंग दीज आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड. देखो प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए, ग्रीन प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए ऑब्वियसली कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है. कौन कौन सी है? सनलाइट चाहिए, बिल्कुल चाहिए. वाटर, रूट्स ऑब्जॉर्ब करती हैं मिनरल्स और वाटर को. सेलुलोज नहीं चाहिए, सेलुलोज नहीं चाहिए. ठीक है, सेलुलोज नहीं चाहिए. क्लोरोफिल चाहिए होता है, बिल्कुल. ऑक्सीजन चाहिए क्या? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है. ऑक्सीजन तो रिलीज होती है. क्या क्या चाहिए? सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ. फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, सी पे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे. प्लांट एक्स लैक्स ऑफ क्लोरोफिल एंड ग्रोज ऑन अ डेड डिकेइंग मैटर. देखो प्लांट एक्स के पास क्लोरोफिल नहीं है. क्लोरोफिल नहीं है तो उसके लीव्स का कलर ग्रीन भी नहीं होगा ऑब्वियसली. ठीक है. प्लांट वाई हैज अ क्लोरोफिल बट ग्रोज ऑन अनदर लिविंग प्लांट. इसके पास क्लोरोफिल होता है लेकिन ये दूसरे प्लांट्स पे लिव करता है. एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम इट. क्या करता है वो? दूसरे प्लांट से अपना फूड इंस्ट्रक्ट कर लेता है. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखो प्लांट एक्स इज क्लोरोफिल, उसके पास क्लोरोफिल है. लैक ऑफ क्लोरोफिल, ग्रोज ऑन डेड डिकेइंग मैटर. देखो डेड डिकेइंग मैटर पे आपका जो डेड डिकेइंग मैटर्स को बेसिकली डाइजेस्ट करके ग्रो करते हैं उनको हम सेफ्रो
सेफ्रोफाइट्स कहते हैं, उनके अंदर मशरूम्स आते हैं, जैसे मशरूम्स है वो डेड डिकेइंग मैटर्स पे डाइजेस्ट करते हैं। तो एक्स क्या होगा, सेफ्रोफाइट। तो एक्स सेफ्रोफाइट यहाँ दिख रहा है मुझे। और दूसरा क्या है, प्लांट वाई हैज़ नो क्लोरोफिल, प्लांट वाई के पास क्लोरोफिल है ही नहीं, विच मीन्स कि उसका नेचर भी कैसा होगा फिर, उसके पास क्लोरोफिल नहीं है तो उसकी लीव्स भी ग्रीन कलर की नहीं होंगी ऑब्वियसली। बेसिकली ये कौन सा प्लांट है, कैस्क्यूटा प्लांट है, कस्क्यूटा प्लांट है ये, ठीक है। कस्क्यूटा प्लांट कहते हैं इसको, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता और ये येलो कलर का होता है। और ये दूसरे प्लांट से अब क्या करता है, दूसरे प्लांट पे बेसिकली चढ़ जाता है और उससे क्या करता है, फिर न्यूट्रिएंट्स और फूड को क्या करता है, लेकर के अपनी ग्रोथ करता है। तो हम पैरासाइट साइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पैरासाइट। तो वाई इज पैरासिटिक, ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक्स इज सेफ्रोफाइट एंड वाई इज पैरासिटिक। सेफ्रोफाइट वो होते हैं जो डेड डिंगिंग मैटर पे काम करते हैं, और पैरासिटिक वो होते हैं जो दूसरे प्लांट से अपना खाना क्या करते हैं, छीन लेते हैं। इसको हम पैरासिटिक रिलेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अ ग्रीन प्लांट इज केप्ट इन क्लोज्ड glass chamber containing a normal air and sunlight. After a few hours, the amount of carbon dioxide decreases while the amount of oxygen increases. Which conclusion is the most accurate? Respiration has stopped completely inside the chamber. Photosynthesis is taking place using the carbon dioxide and releasing the oxygen, right? Or carbon dioxide is being converted directly into oxygen. Oxygen is absorbed by the plant during the photosynthesis. तो देखो, ग्रीन प्लांट है आपके पास में, kept closed in a glass chamber containing a normal air and sunlight. After a few hours, the amount of carbon dioxide decreases. कुछ समय के बाद के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हुई तो ऑब्वियसली हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड किस लिए चाहिए होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए। सो सी यहाँ पे देखो फोटोसिंथेसिस कहाँ है, ये रहा। फोटोसिंथेसिस टेकिंग प्लेस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज कर रहा है तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो चुका है, राइट। फोटोसिंथेसिस में बेटा CO2 एब्जॉर्ब हो जाती है और ऑक्सीजन आपकी रिलीज होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। So this is all for the class 7 science. This is all from my side. I hope you enjoy the session. Till we meet next, take care. Bye bye.